सूरत अलब करत आत 10 فنقال ابن نميوز فزيادة اما اللويا مرزا اويليام ايزياب علم نميا ويناوائی وزن باونے 2:10 قرآن مجید کی سورت الب کرت کی بالائی آیت 2:10 کا آغاز حفن جر افن او سے ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں میں، بیچ میں، اندر، آر پار، ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ قالاب ننم وہی مرکب ہے جس کا تفصیلی مطالعہ ہم سورت الب کرت کی آیت 2:7 کے مضمون میں کر چکے ہیں اور تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں کہ قالاب دل نہیں بلکہ ذہن اور سوچ کو کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ میورز بنیادی حروف میم ریزواد سے ماخوذ ہے، جو عربی زبان کے لفظ سقم اور انلو کا مترادف لفظ ہے، جس کے معنی میں بیماری، ضعف، نقص، ناراضگی، غیر اطمینانی، ناخوشی، فتور، شیطانی، بدی اور برائی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اگر یہی لفظ مرض کسی لغت میں دیکھیں تو بیماری، ضعف، نقص، ناراضگی، غیر اطمینانی، ناخوشی، ناموافقت، غیر متفق، فتور، شیطانی، بدی اور برائی وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہی لفظ مرض متضاد معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً علاج، دیکھ بھال، اطمینان، اچھا، مناسب، خوش، متفق، راضی، رضائیت، موافقت، خوشنودی اور تحمل وغیرہ۔ آپ عربی زبان کی کوئی بھی لغت، کوئی موجم اور کوئی بھی اچھی سے اچھی ڈکشنری کھول کر اس میں عربی کا لفظ و مرض دیکھیں گے تو آپ کی الجھن میں یقیناً اضافہ ہوگا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک ہی لفظ و مرض بیک وقت بیماری کے معنی بھی دیتا ہے اور علاج کے معنی بھی دیتا ہے۔ وہی لفظ مرض ناراضگی کے معنی بھی دیتا ہے اور خوشنودی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہی لفظ مرض غیر متفق اور غیر مطمئن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہی لفظ مرض مطمئن، متفق اور تحمل و برداشت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہی لفظ مرض اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی اور فتور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی عالم سے پوچھ کر دیکھ لے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ و مرض غمی خوشی، اچھے برے، نیک وبد اور مرض و علاج کے لیے استعمال ہو۔ راقم الحروف کو 99% یقین ہے کہ آپ کے سب علماء مل کر بھی اس الجھن کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ دراصل انہیں کے اساتذہ کرام نے قرآنی لفظ و مرض کے معنی میں جان بوجھ کر یہ الجھن اور خرابی پیدا کی تھی تاکہ مسجد الحرام اور ان کے آباء و اجداد کے مشرکانہ مذہب کی رسومات اور چاند ستاروں اور پتھروں کی پوجا پاٹ کو قرآن کی سند کے ساتھ نہ صرف دوام بخشا جائے بلکہ بلا روک ٹوٹ زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ مذہب کو اسلام کا لبادہ پہنا کر جاری رکھا جائے۔ لہذا پتھروں کی پوجا سے پہلے کیے جانے والے اشنان یعنی وضوء اور چاند خدا کے روزوں اور مکہ میں بنے ہوئے شیو جی کے قدیم مندر کی ممنوعہ سجدہ گاہ کی یاترا کے دوران بیمار پڑ جانے والوں کے لیے مشرکانہ مذاہب میں دی جانے والی خصوصی رعایت دینے کی قدیم روایت کو قرآن کے تراجم میں داخل کرنے کے لیے عربی زبان کے دو بنیادی الفاظ مرض اور رز کے ماخوذات کو ایک دوسرے میں جان بوجھ کر گڈمڈ کیا گیا تاکہ جن آیات کے تراجم میں ہیر پھیر کیا گیا ان آیات کے اصل معنی تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم وانی مقصد کی تکمیل کے لیے اسلام کے دور اول کے علماء نے سب سے پہلے عربی زبان کے بنیادی حروف رازاد حمزہ سے بننے والے بنیادی لفظ رز کو یہ کہہ کر چھپا لیا کہ الف و او اور آ چھوٹیے، چونکہ ایک دوسرے کے بدل ہیں اس لیے یہ لفظ عربی زبان کے کسی بھی لفظ میں ایک دوسرے بدلے جا سکتے ہیں۔ ان شیطانوں نے عربی کے مذکورہ بنیادی لفظ رز کو بالکل اسی طرح غائب کر کے رز سے دو نئے بنیادی لفظ رضا اور رضیت ایجاد کر لیے، جس طرح ان بدبختوں نے مسجد الحرام کی مشرکانہ پوجا کو نماز کی شکل میں قرآن کے تراجم میں لانے کے لیے عربی زبان کے بنیادی لفظ صل کو غائب کر کے صلو کی بجائے صلو اور صلاح گھڑ لیے، اور ان کے وصال کے بعد آنے والے اہل قرآن نے اپنے پیر و مرشد سے دو ہاتھ اور آگے بڑھ کے نہ صلو نہ صلاح بلکہ صلات کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک اور تیسرا لفظ وصل گھڑ لیا۔ مگر یہ سب کے سب عقل سے آری جولاک عربی زبان کے بنیادی لفظ گھڑتے ہوئے یہ پتے کی بات بھول گئے کہ قاعدے کی روح سے حروف میں علت یعنی الف و او اور آ
छूटिए में से कोई भी लफ्ज़ अरबी ज़बान के किसी भी बुनियादी लफ्ज़ का हिस्सा नहीं हो सकता, और जिस लफ्ज़ में हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ आता हो वो लफ्ज़ बुनियादी लफ्ज़ नहीं हो सकता। ये बात तो कुरान का एक आम कारी भी समझता है कि अगर अरबी ज़बान के किसी लफ्ज़ के बुनियादी हुरूफ जाना हो तो इस लफ्ज़ में आने वाले तमाम हुरूफ में इल्लत मिन्हा करके बाकी बच जाने वाले हुरूफ से बुनियादी लफ्ज़ निकाला जाता है, जिसमें अलिफ, अलिफ, वा, ओ और आ, छूटिए में से कोई भी हर्फ में इल्लत मौजूद नहीं होता। इन शैतानों ने पहले तो रज़ को मर्ज़ से गडमट करने के लिए रज़ को गायब करके ज़ौ और रज़ीत बनाए, फिर रज़ के इस्म की कुरान में आने वाली मुख्तलिफ इश्काल जो दरअसल कायदे की रूह से बुनियादी लफ्ज़ रज़ के माखूज़त के शुरू में हर्फ मीम का इजाफ़ा करने से बनाई गई थी। मसलन मर्ज़ और मरीज़ वगैरह को बुनियादी हुरूफ मीम रेज़ुआत से बनने वाले बुनियादी लफ्ज़ मर्ज़ के खाते में डाल दिया। इस तरह रज़ से माखूज़ किए जाने वाले इस्म यानी मर्ज़, मरीज़ और मर्ज़ वगैरह को जब कवायद के बरक्स बुनियादी लफ्ज़ मर्ज़ से उठाया गया तो अरबी की लुगात, मुजमत और डिक्शनरियों में अरबी का लफ्ज़ मर्ज़ बीमारी, नक्स, खराबी और फतूर के मानी के साथ साथ रज़ाइत, अतमन्नान, खुशनुदी और तहम्मुल वगैरह के मानी में भी आ गया, और अरबी ज़बान के लफ्ज़ और मर्ज़ के मानी तलाश करने वालों की उलझन का सबब बन गया कि कुरान के तराजिम के लिए अरबी ज़बान के लफ्ज़ और मर्ज़ के दोनों में से कौन से मानी लिए जाएं, मुतज़ाद या गैर मुतज़ाद। यहाँ पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम भी फंस गए, क्योंकि उनके पास इस बात का इल्म ही नहीं था कि अरबी ज़बान के एक ही लफ्ज़ और मर्ज़ से मुतज़ाद और गैर मुतज़ाद अल्फाज कैसे लिए जा सकते हैं। अब अपनी कम इल्मी और बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए इन नालायकों ने अपनी अपनी लुगात घर लें, जिनमें अरबी के लफ्ज़ और मर्ज़ के माखूज़त उन्हें मानी में दिए गए, जो मानी उन्होंने कुरानी आयत के झूठे तराजिम में घर रखे थे, ताकि बैक वक्त उनके घड़े हुए तराजिम को भी तक़वियत मिलती रहे और लोग उनकी लुगात को पढ़कर गुमराह भी होते रहे। खैर, ज़बान के कवायद के मुताबिक हमारे ज़ेर मुताला कुरानी आयत 2:10 में कालाबनिनम के बाद दो पेश के साथ आने वाला लफ्ज़ म्यूर्स बुनियादी हुरूफ मीम रेज़ुआद से माखूज़ इस्म निकर है, जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ उसैक़िम और उनलु का मुतरादिफ लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ म्यूर्स मानी में अगरचे बीमारी, ज़ुफ़, नक्स, नाराज़गी, फतूर, शैतानी, बदी और बुराई वगैरह में लिया जाता है, मगर चूँकि सूरत अलबकरत की ही आयत 2:7 के ज़िम्न में की जाने वाले तहक़ीक़ से यह साबित हो चुका है कि कालावनिनम का कालाव दरअसल गोश्त का बना हुआ वो दिल नहीं है जो इंसानी जिस्म में खून को धकेलता है, बल्कि दौरे हाजिर की साइंसी तहक़ीक़ और माहिरीन ज़बानियत भी ये साबित कर चुके हैं कि कालाव के असल मानी इंसानी सोच और इंसानी जहन है। इसलिए बीमारी की बजाय म्यूर्स के मानी या फतूर या बुराई लिए जाएंगे। इसके बाद फ़ेज़ आमा के मुरक्कब में फ़े हर्फ आद है, जो पस, फिर, जो और जिसे या जिसको के मानी के साथ साथ हकीकी अल्फाज यानी दर हकीकत के मानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ज़्यादे इस्म फ़ेल है और आमा जिनके दिलों में फतूर है उनकी जमा की मफ़ूल ज़मीर गायब है। फ़ेज़ आमा का मुरक्कब जो उन्हें बढ़ाकर बाहर कर रहा है, जो उन्हें बढ़ाकर आगे कर रहा है, अपने आप में मुकम्मल मानी देकर यही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अल्लोया में रज़ायर की शक्ल में दो इकट्ठे इस्म आ रहे हैं, जिनमें से अल्लोया इस्म मारफ़ा है और मेरज़ा तनवीन फ़तह के साथ इस्म निकर है। ऐसी तनवीन फ़तह आम तौर पर ई का किसी अकेली शय के होने पर दलालत करती है। अगर आप राक़िमुल हुरूफ के मज़मून मोहम्मद हिस्सा ओल का मुताला फरमाएं तो आपको अरबी ज़बान की ग्रामर के इस कायदे की मज़ीद तफसील मिल जाएगी, जिसकी रूह से अगर दो इस्म और इस्म ज़मीर किसी जुमले में इकट्ठे आएं और उनके दरमियान कोई हर्फ रब्त यानी हो वगैरह कोई और हर्फ ना हो तो उनके दरमियान खुद ब खुद रखा की शक्ल में हर्फ जर मौजूद होता है, जैसे ए मुदीर अल-मुतब यानी मकतब का मुदीर, दफ्तर का मुंतज़िम। इसी तरह किताब अल-मुदर्रिस को मुदर्रिस की किताब यानी उस्ताद की किताब पढ़ा और समझा जाएगा, और उसका तर्जुमा भी किताब और अल-मुदर्रिस के दोनों इसमोहे के दरमियान की लगाकर किया जाएगा। रईस अल जामिया को जामिया यानी यूनिवर्सिटी का सदर कहा जाएगा।
मेहंदस उर्बाक को उर्बाक का मेहंदस यानी बिजली का इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझा और लिखा जाएगा। मुअल्लिम मदरस को मदरसे का मुअल्लिम स्कूल का उस्ताद कहा जाएगा। और ये तो अब जानते ही हैं कि मदरसल बनात के मानी लड़कियों का मदरसा लड़कियों का स्कूल होते हैं। जैसा कि बालाई सतूर की मिसालों में अपने मुलाहजा फरमाया कि इकट्ठे आने वाले हर दो समूहे के दरमियान कुछ न हो तो खुद ब खुद के अल्फाज लगाकर उन्हें बाहम जोड़ा जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे ज़ेर मुताला सूरत अलबकरत की आयत 2:10 में आने वाले दो इस्म अल्लुया में रज़ा जिनके दरमियान कोई हर्फ रब्त मौजूद नहीं है, कायदे के मुताबिक खुद ब खुद अल्लुया का मेरज़ा पर है और समझे जाएंगे। अब अगर यहाँ मेरज़ा को बुनियादी हुरूफ मीम रेज़वाद का माखूज बनाकर अल्लुया के साथ आने वाले इस्म मेरज़ा के मानी बीमारी, ज़ोफ़, नक्स, फतूर, शैतानी, बदी और बुराई वगैरह लिए जाएं तो फिनो एतबार से अल्लुया मेरज़ा के मानी नौज़ु बिल्लाह अल्लाह की बीमारी, अल्लाह का ज़ोफ़, अल्लाह का नक्स, अल्लाह का फतूर, अल्लाह की शैतानी और अल्लाह की बदी समझे जाएंगे, जो बिल्कुल नामुमकिन है। लिहाजा अल्लुया मेरज़ा में अल्लाह के साथ आने वाला इस्म मेरज़ा किसी तौर पर भी बुनियादी हुरूफ मीम रेज़वाद का माखूज नहीं हो सकता, बल्कि मेरज़ा यकीनी तौर पर शुरू में मीम के इजाफे के साथ बुनियादी लफ्ज़ ज़ा से ही माखूज है, जो दरअसल अल्लुया मेरज़ा की शक्ल में अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह का तहम्मुल बयान कर रहा है। मगर हमारे लनती उलमा अल्लुया मेरज़ा के इस्म मेरज़ा को बुनियादी हुरूफ मीम रेज़वाद से अलिफ़ बीमारी के मानी में लेते हैं और इससे पहले आने वाले अल्लाह के इस्म को किसी नामालूम फ़ेल का फ़ाइल बनाकर अल्लाह को उनके दिलों की बीमारी का बढ़ाने वाला और उनकी बीमारी में इजाफ़ा करने वाला बताते हैं। जबकि कालावनम में उर्फ़े ज़्यादे आमा अल्लुया मेरज़ा तक के अल्फाज में कहीं किसी फ़ेल का नामो निशान ही नहीं है। जब इस आयत के बालाई अल्फाज में कोई फ़ेल ही मौजूद नहीं, तो अल्लाह ने उनके दिलों की बीमारी बढ़ाने का फ़ेल कैसे सरअंजाम दे दिया? ये वो लोग हैं जो नकल दर नकल तराजिम नकल करने में भी इस कदर अंधे और अहमक हैं कि कुरान के अल्फाज अफ़न कालावनम में उर्फ़े ज़्यादे आमा अल्लुया मेरज़ा में ये भी ना देख पाए कि इनमें कोई फ़ेल भी है कि नहीं। अगर कोई ये कहे कि ज़्यादे आमा का ज़्यादे फ़ेल है तो उसे अरबी ज़ुबान नहीं आती, क्योंकि ज़्यादे अपनी नौयत में कोई फ़ेल नहीं बल्कि ग्रामर के लिहाज से इसम फ़ेल इस्म मस्दर है जिसका कोई फ़ाइल नहीं होता। अगर कवायद के लिहाज से इस मस्दर ज़्यादे का कोई फ़ाइल ही नहीं होता तो फिर ज़्यादे के साथ आने वाली जमा की ज़मीर क़यामा के भी बाद में आने वाला अल्लाह का इस्म ज़्यादे का फ़ेल कैसे सरअंजाम दे सकता है? पूरी दुनिया के उलमा, माहिरीन ज़बानियात और तमाम अहल ज़बान अरब हज़रात को राक़िम अल हुरूफ खुला चैलेंज करता है कि वो तो अरबी ज़बान के कवायद के मुस्लिमा सबूतों के साथ राक़िम अल हुरूफ की तस्हीह फरमाएं या फिर कुरान के इन गुमराह कुन तराजिम को जलाकर खाक कर दें जिनमें अल्लाह तबारक ताला की ज़ात इन बाबरकात पर यह घिनौना इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अल्लाह उनके दिलों की बीमारी को बढ़ाता है। दरअसल ये तो सिर्फ नियात की शैतानी तोप की करिश्मा साजियां हैं जिससे सभी शैतान कुरान को बेदरेग दाग रहे हैं। अंधों ने जब कालावनम के साथ आने वाले अम्यूर्स को बीमारी, इल्लत और बिगाड़ के मानी में लिया तो इससे आगे अल्लुया के इस्म के साथ आने वाले मिर्ज़ा को भी आंख बंद करके तसिफ आयत की रूह से बीमारी, इल्लत और बिगाड़ के मानी में ही ले लिया। फिर जब ये बीमारी, इल्लत और बिगाड़ अल्लुया के इस्म के साथ आने लगे तो ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे? झूठ पे और झूठ खड़ा और अल्लुया को लोगों के दिलों में बीमारी, इल्लत और बिगाड़ बढ़ाने वाला बना दिया। बात तो सभी शैतान एक ही कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ अल्फाज के हीर फेर का है। जो अहल कुरान हज़रात अल्लुया को खुदा का कानून कहते हैं, उन्होंने भी निहायत इल्मी अंदाज में यहाँ पर वही झूठ खड़ा जो रिवायती शैतानों ने घर रखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मिर्ज़ा को उन लोगों ने भी बीमारी, इल्लत और बिगाड़ वाले बुनियादी लफ्ज़ और मर्स से ही उठाकर अल्लाह की बजाय खुदा के कानून से ही इंसानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ा। मगर कालाव को ज़हन के मानी में इस्तेमाल करके उन्होंने दुरुस्त काम किया। खैर,
बात अल्लुया में रज़ा के जुमले के दुरुस्त मानी की हो रही थी, जिसको किसी भी मकतबा फ़िक्र ने इसके असल मानी में नहीं लिया। हालांकि कुरान मजीद की आयत 2:207, 2:265 और 4:114 में आने वाले ऐसे ही जुमले मेरज़यतन अल्लुइन के मेरज़यतन को बुनियादी लफ्ज़ रज़ का माखूज़ समझते हुए मेरज़यतन का मतलब खुशनुदी और रज़ा लेकर मेरज़यतन अल्लुइन का तर्जुमा अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशी किया जाता है। क्योंकि मुतर्जमीन और उलमा के पास उन आयात में आने वाले जुमले मिर्ज़यतन अल्लुइन के मिर्ज़यत को मर्ज़ यानी इल्लत व ख़राबी के बुनियादी लफ्ज़ से लेने की बजाय बुनियादी लफ्ज़ रज़ से लेने के सिवा कोई चारा नहीं था, वरना मिर्ज़यतन अल्लुइन यानी अल्लाह के मिर्ज़यतन बमनी अल्लाह की इल्लत और ख़राबी बन जाते और कोई भी शख्स ऐसे तराजिम को तस्लीम न करता। इसलिए यहाँ पर तसर्फ़ आयात के तरीक़े को जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरह कुरान मजीद की आयत 66:1 में भी यही लफ्ज़ मिर्ज़यतन ऐसी आयत में मिर्ज़यतन ज़ौज की शक्ल में इस्तेमाल हुआ, जिसके तराजिम में इन लोगों ने ज़ौज के मानी नबी की बीवियाँ अज़वाज मुतहरात लेना थे। इसलिए यहाँ पर आने वाले मिर्ज़यत को भी मजबूरना मर्ज़ यानी इल्लत व ख़राबी के बुनियादी लफ्ज़ से लेने की बजाय बुनियादी लफ्ज़ रज़ से ही लेना पड़ा, नहीं तो वबाल आ जाता। कुरान मजीद की आयत 19:55 में आने वाले ऐसे ही जुमले मुएन मेरज़नावा के मेरज़नावा को भी बेमर मजबूरी मर्ज़ की बजाय बुनियादी लफ्ज़ रज़ से ही लेना पड़ा। लेकिन इसी तरीक़ पर हमारे ज़ेर मुताला कुरान मजीद की आयत 2:10 के जुमले हल्लुया मेरज़ा में आने वाले लफ्ज़ मेरज़ा को बुनियादी लफ्ज़ रज़ से नहीं लिया गया, बल्कि कवायद के बरक्स मेरज़ा को इल्लत और ख़राबी के बुनियादी लफ्ज़ और मर्ज़ से लेकर उसका तर्जुमा इल्लत और ख़राबी किया गया। जबकि मेरज़ा और मेरज़यत और मेरज़नावा में कोई फ़र्क नहीं और कवायद के लिहाज से ये सब के सब बुनियादी लफ्ज़ रज़ के ही माखूज़त हैं, जो किसी इल्लत, किसी बीमारी, किसी ख़राबी और किसी बिगाड़ के मानी में नहीं, बल्कि रज़ा, खुशनुदी, तहम्मुल और मुवाफ़क़त के मानी में हैं। कहीं सही और कहीं गलत मानी में लोगों को इसलिए उलझाया गया कि कुरान मजीद की आयत 4:43 और 5:6 में आने वाले इस्म मिर्ज़िक को दरअसल बुनियादी लफ्ज़ रज़ से लेने की बजाय इल्लत व बीमारी के लफ्ज़ और मर्ज़ से लेना था, ताकि पत्थरों की पूजा पाठ से पहले किए जाने वाले अशनान यानी गुस्ल और उज़ू के बयान को बयां कुरान के तराजी में दाखिल करके फ़ारसी मरीज़ों यानी बीमारों को मुशरिकीन के रिवाज के मुताबिक छूट दी जाए और पानी ना मिलने की सूरत में रेत और मिट्टी से अशनान करने की सहूलत दी जाए। हालांकि ये इस्म मेरज़े वही मर्ज़ी है जिसे हम बमनी खुशी, इरादा और रज़ा के तौर पर अरबी ज़बान के साथ साथ अपनी ज़बान में भी उन्हें मानी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुरान मजीद की आयत 2:184, 2:185 और 2:196 में आने वाले इस्म मिन ज़ालिफ़ को भी बुनियादी लफ्ज़ रज़ की बजाय खिलाफ़न कवायद जानबूझकर इल्लत और बीमारी के लफ्ज़ मर्ज़ से लिया गया, ताकि चांद खुदा की इबादत में सुबह सादिक से लेकर सूरज ढलने तक भूखे प्यासे रहकर रखे जाने वाले मुशरिकीन के रोज़ों के बयान को भी बाना कुरान मजीद के तराजी में दाखिल किया जाए और मुशरिकीन के मजहबी अकायद के मुताबिक बीमारों को रोज़ों में छूट और बाद में रोज़े पूरे करने की सहूलत दी जाए। अरबी समेत तमाम सामी ज़बानों की यही खूबसूरती है कि उनके अल्फाज खुद ब खुद उनके सही बुनियादी हरूफ से निकलते चले जाते हैं और बिल्कुल दुरुस्त शक्ल में ग्रामर के मुताबिक मुख्तलिफ आयात, जुमलों और फ़िक्रों में तश्कील पाते हैं, जिनके समझने में कोई इबहाम पैदा नहीं होता। लेकिन जहाँ नियत ही ख़राब हो वहाँ इबहाम खुद पैदा करके तराजिम बिगाड़ दिए जाते हैं, जिसकी झलक अब बालाई आयात के तराजिम में मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। हमारे ज़ेर मुताला कुरानी आयत 2:10 में आने वाला अगला जुमला ओएलेयाम एज़याब इल्म है, जिसमें ओएलेयाम के मानी हैं और उनके लिए, जबकि एज़याब इल्म के मानी हैं तलमनाक अजाब और दर्दनाक परेशानी। इससे अगला जुमला नमिया हुए नवा वज़न बावनेत है, जिसमें नमिया हर्फ जर और इसमें मौसूल के इश्तराक से जो और जिसको के मानी में इससे पहले जुमले में आने वाले एज़याब इल्म पर रजत करके इस दर्दनाक अजाब का हवाला दे रहा है जिसको वो झुटलाते थे।
यानी हुए नवा किसी शय के होने के मानी में कैन के लफ्ज़ का ज़माना माजी का फ़ेल है, जिसके साथ हुआ जमा गायब में उनका इस्म फ़ाइल है, जिसको वो होते थे के मानी में लिया जाता है। और जब हुए नवा का होना फ़ेल इससे अगले मुरक्कब के वज़न बावने के फ़ेल में ज़म हुआ तो हुए नवा सिर्फ थे के मानी तक महदूद हो गया, क्योंकि वज़न बावने के मुरक्कब में वज़न बा यानी झुटलाने के फ़ेल के साथ भी इसी बात को पक्का करने के लिए कि वो कौन है और किस शय को झुटला रहा है, एक बार फिर जमा गायब का इस्म फ़ाइल विनिड की शक्ल में बमनी वो आ रहा है। लिहाजा वज़न बावने झुटलाने वाले लोग हैं और नमया उए नवाई वज़न बावने के मुकम्मल जुमले में इन लोगों की बात की जा रही है जो अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी और अल्लाह के तहम्मुल से बाहर हो जाने की वजह से उन पर आने वाले दर्दनाक अजाब को झुटलाते थे। मगर अक्ल के अंधे जुहलाक ने इस आयत 2:10 के अल्फाज हुएलेआम एज़ाब इल्म नमया हुए नवाई वज़न बावने का जेवटा तर्जुमा ये घड़ा कि उनके लिए दर्दनाक अजाब इसलिए है क्योंकि वो झूठ बोलते थे और उनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। फतेह मोहम्मद जालंधरी। और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। ताहिर अल कादरी। उन्हें झूठ बोलने की पादाश में अजाब दिया जाएगा। मौदूदी। इस रविश को निभाने के लिए उन्हें कदम कदम पर झूठ बोलना और हर मौका पर नया बहरूप बदलना पड़ता है। परवेज। क्या आप समझते हैं कि इन बदबख्तों को अरबी ज़बान आती होगी? कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो उन बदबख्तों की पूजा करते हैं। वो उन जुहलाक की घड़ी हुई खुराफात में कुरान नहीं बल्कि कुरान के नाम पर झूठ के पुलिंदे पढ़ते हैं, जिन्हें तलफ किए बगैर कुरान का हकीकी मफहूम समझ में नहीं आ सकता। बहुत से क़ारीन ढूंढ ढूंढ के कुरान मुखालिफ मज़ामीन पढ़ते हैं और लाख मना करने के बावजूद राक़िमुल हुरूफ को तजुज़िये के लिए भेज देते हैं ताकि वो इन मज़ामीन को सही या गलत मानकर गुनाह से बच सकें। बहरहाल गुनाह से बचने आना बचने वाली बात तो राक़िमुल हुरूफ को समझ नहीं आई, मगर ये बात ज़रूर समझ में आ गई जो कुरान मुखालिफ मज़कूरा मज़ामीन की शह सुर्खियों में होती है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा उस्मान नून ने सिवाय एक सरकारी नुस्खे के चुन चुन कर बेदरेग कुरान जला दिए थे, जिनमें आयात और सूरतों की शक्ल में बहुत सा इजाफी मवाद मौजूद था जो मौजूदा कुरान में नहीं है। इसलिए ये बात कुछ और शौक़ से नहीं कही जा सकती कि जो बचा बचाया कुरान हम तक पहुँच पाया, इसमें क्या कुछ इजाफा किया गया और इसमें से क्या कुछ मिन्हा किया गया। ये मरदूद तो ऐसी बातें कुरान की कामलियत पर शक को यकीन में बदलने के लिए करते रहते हैं, मगर ये बात गौर तलब ज़रूर है कि हज़रत उस्मान को कुरान के ढेर ओहे के ढेर जलाकर भस्म कर देने की नौबत क्यों पेश आए। काश आज भी कोई उस्मान होता जो कुरान के सारे तराजिम के ढेरों के ढेर बिला खौफ व ख़तर जलाकर हमेशा के लिए भस्म कर देता। जब तक कुरान के सभी तराजिम और तफसीरों को जलाकर खाक नहीं कर दिया जाता और कुरान के दर्स देने वालों का सफाया नहीं हो जाता, कुरान का असल मफहूम बाहर नहीं आ सकता। 10 मिनट का लफ्ज़ बलफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमा मुलाहजा फरमाइए। फ़िनकाला अपने नम में उर्फ़े ज़्यादे आमा अल्लुया मेरे ज़ा ओलेआम ऐज़्याब इल्म नमया हुए नवाई वज़न बावने 2:10। उनके जहनों में फतूर है जो बढ़कर उन्हें अल्लाह के तहम्मुल खुशनूदी से बाहर कर रहा है और उनके लिए दर्दनाक तकलीफ है जिसको वो झुटलाते थे। कुरान मजीद की सूरत अल-बकरत की आयत 2:10 का लफ्ज़ बलफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमा। आपका खैर अंदेश काशिफ खान।